Hello everyone. Today we are doing the examples of chapter number 6, lines and angles. This chapter we have already completed, but examples we have not done, and examples are also very important. So today we are doing the examples. The example number 1, 2, 3, 4 we are doing today, and in the next module I will give you example number 5, 6, 7 and 8. Now example number 1 is in figure 6.9, lines PQ and RS intersect each other at point O. If angle POR is to angle ROQ equals to 5:7, find all the angles. Now here in this figure, PQ and RS are the intersecting line. This is the PQ line, this is the RS line. These are the intersecting line. ठीक है, and the ratio of two angles is given to us, that is POR and ROQ. So here POR is this one is the POR, and ROQ, so this one is the ROQ, this one, this and this angle, the ratio of these two angles are given to us. So ratio of these two angles is 5:7. So by two methods you can solve this sum कि when the ratio is given, the ratio of this angle is 5, तो इसको we will take 5x, angle POR equals to 5x and angle ROQ equals to, we can take 7x. Okay, now this one is 5x, so opposite to this angle POR, which angle is there? QOS, angle QOS is there, and these are vertically opposite angle. तो ये 5x है, तो इसके opposite this one also will be 5x, and this angle is 7x, तो this is the vertically opposite angle, so this will also be 7x. ठीक है, now after that these four angles form 360 degree, means 5x plus 7x plus 5x plus 7x equals to 360 degree. मीन्स जब हम ये चारों एंगल्स एक साथ लेंगे तो वो चारों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, हमारे 360 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं. तो दिस वन इज़ योर 5x, दिस वन इज़ 5x, दिस इज़ 7x एंड दिस वन इज़ 7x. तो हाउ यू कैन सॉल्व दिस? 5x प्लस 7x plus 5x plus 7x equals to 360 degree. Now when you will add them up, so you will get 24x equals to 360 degree. So x equals to 360 upon 24. You can cut it by table of 6, 6 4s are, 6 6 and 0s are, then by table of 4, 15 will come. तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी. तो when you will get the value of x is 15, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनमें आपको x की वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये आपके एंगल्स आ जाएंगे. तो एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QOS इक्वल्स टू 5x था, तो 5 इंटू 15 75 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, एंड एंगल ROQ इक्वल्स टू एंगल POS इक्वल्स टू कितना था हमारा? 7x, तो 7 इंटू 15 कर देंगे तो 135 हो जाएगा. तो दिस विल बी द आंसर. तो दिस वॉज द थर्ड मैथड, दिस वॉज फर्स्ट मैथड. नाउ सेकेंड मैथड इज व्हाट यू कैन डू कि दिस एंगल POR एंड एंगल ROQ, दिस एंगल POR एंड दिस एंगल ROQ, ये दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास में? 180 डिग्री बनता है. तो एंगल POR प्लस ROQ 180 डिग्री लीनियर पेयर. नाउ POR इज टू ROQ गिवन है 5:7. सम ऑफ द रेशियो कर लेंगे, 5 प्लस 7 इक्वल्स टू 12. अब इसमें से हम एंगल POR की वैल्यू फाइंड करेंगे और एंगल ROQ की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो एंगल POR की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इन क्लास 6 यू हैव डन द रेशियो चैप्टर, क्लास 6 एंड क्लास 7. तो इन द रेशियो व्हाट वाज देयर कि टोटल मनी अपॉन सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ राम, मोहन, सोहन, जो भी आपका नेम होता था. तो सेम हमने यहाँ किया है. टोटल एंगल हमारा कितना है? 180 डिग्री है. ठीक है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, मतलब सम ऑफ द रेशियो क्या हो गया हमारा? 12 हो गया. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ द जो भी आपका नेम होता है. तो यहाँ हमारा रेशियो ऑफ एंगल POR क्या है हमारा? 5 है. तो इस फॉर्मूले से जो आपने फॉर्मूला क्लास 6 में पढ़ा था, दिस फॉर्मूला यू कैन पुट हियर कि 5
जो आपका एंगल का रेशियो है डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो मल्टीप्लाई बाय द टोटल एंगल 180 डिग्री। तो ये 75 आ जाएगा, ये 105 आ जाएगा। नाउ आप क्या करोगे, अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला फॉर्म वो कर दोगे। एंगल POR आपका कितना आ गया, 75 डिग्री आ गया। तो ये भी क्या हो जाएगा 75 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, और एंगल ROQ ये आपका 105 आएगा, और इसका अपोजिट ये वाला भी कितना हो जाएगा 105 वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो बाय 2 मेथड्स you can solve this sum. Now example number 2, in figure 6.10 ray OS stand on a line POQ, ray OR and ray OT are angle bisector of angle POS and angle SOQ respectively. If angle POS is x, find angle ROT. So what is given, this figure is given to you. In this ray OS stand on a line POQ, ये जो रे OS है ये इस लाइन POQ पे स्टैंड करती है। ओके, नाउ रे OR एंड रे OT आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ POS एंड SOQ। ये जो आपकी OR है ये एंगल बाइसेक्टर है POS की, इस वाले POS की एंगल बाइसेक्टर है दिस रे, मीन्स इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, और सेकेंड जो आपका रे OT है दिस रे OT, ये जो आपकी रे OT है ये आपका इस एंगल SOQ को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगल सिंगल का साइन बना हुआ है या डबल डबल का साइन बना हुआ है, मीन्स दीज 2 एंगल्स आर इक्वल एंड दीज 2 एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, नाउ एंगल POS इक्वल्स टू x, ये जो आपका एंगल POS है पूरा, ये पूरा आपका क्या है x है। फाइंड ROT, आपको फाइंड करना है ये एंगल ROT, दिस एंगल, ये वाला एंगल ROT ये पूरा फाइंड करना है। और ये बना किससे, इससे और इससे मिलके बना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़, बस देखने में ही थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, अदरवाइज बाय द फिगर ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस। नाउ लिसन, कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिगर। ये पूरा एंगल आपको x गिवन है और ये आपका OR एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया x/2, एंगल POR x/2 और एंगल ROS ये भी कितना हो जाएगा x/2। ये पूरा x है तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो x/2 हो जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, अब दिस एंगल POS एंड दिस एंगल QOS, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वी विल राइट POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब POS हमको क्या गिवन है, x गिवन है, तो यहाँ हम पुट कर देंगे x प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल QOS की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 180 माइनस x, 180 डिग्री माइनस x डिग्री आ जाएगी। तो ये वाला जो आपका है एंगल QOS ये आपका आ गया 180 माइनस x। ठीक है, अब 180 माइनस x जब आ गया और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मतलब इसका एक पार्ट क्या हुआ 180 माइनस x अपॉन 2 एंड दिस वन ऑल्सो 180 माइनस x अपॉन 2। ठीक है, अब आपके पास में चारों एंगल्स आ गए, दिस एंगल इज़ x/2, दिस एंगल इज़ x/2, क्योंकि ये पूरा x था इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। इधर वाला पूरा जो एंगल QOS है वो 180 माइनस x है, तो ये वाला 180 माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और ये भी 180 माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका। अब आपको फाइंड करना है ROT। तो ROT किससे मिलके बना है, ये रहा ROT बना है आपका ROS और SOT से मिलके, मीन्स इस x/2 और इस 180 माइनस x/2 को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो आपका ROT आ जाएगा। वेरी सिंपल, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पे x/2 प्लस 180 माइनस x अपॉन 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, एंगल ROT इक्वल्स टू, ठीक है, x/2 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 180 अपॉन 2 कर देंगे एंड माइनस x/2 कर देंगे, मतलब ये जो 2 इस पूरे के नीचे था उसको हमने सेपरेट कर दिया, तो
180 अपॉन 2 आ गया और माइनस एक्स बाई 2 आ गया। अब ये नेगेटिव एक्स बाई 2 है, ये पॉजिटिव एक्स बाई 2 है, और ये कैंसिल कर देंगे 90, तो हमारा आर ओ टी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, सिंपल। तो आई हैव गिवन दिस सॉल्यूशन, you can read it carefully and do it in your notebook. Same solution is there which I explained to you. Example number 3. In figure 6.11, OP, OQ, OR and OS are 4 rays. OP, OQ, OR and OS are 4 rays. Prove that angle POQ plus QR plus SOR plus angle POS equals to 360 degree. Now this is the figure. ठीक है, अभी ये 4 रेज हैं आपकी, ये इस तरीके से फॉर्म है। OP, दिस इज OP, OQ, OR एंड OS। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और आपको प्रूव क्या करना है कि दिस एंगल POS प्लस ये आपका POS प्लस ROS प्लस ROQ प्लस POQ इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रे, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ द रे OT अपोजिट टू OQ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं रे OP से। तो रे OP स्टैंड ऑन लाइन TOQ, ये जो आपकी लाइन TOQ है इसके ऊपर ये रे OP स्टैंड कर रही है। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, मीन्स TOP प्लस POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर टेकिंग सेकेंड रे, दिस सेकेंड रे इज OS। ठीक है, अब OS में आपका 180 डिग्री कैसे फॉर्म होगा, कौन कौन से एंगल मिलके होंगे 180 डिग्री, एक तो ये POS और सेकेंड दिस वन POS and TOS. Ray OS stand on TOQ. TOS and SOQ. This one, this TOS and this SOQ. ये वाला SOQ, ये पूरा देखो मिलके कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। तो TOS this one and SOQ this one, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का SOQ। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। अब ये आपका सेकेंड हो गया लीनियर पेयर से। अब यहाँ पे TOS तो सेम रखा, और SOR प्लस QOR कहाँ से आ गया, इस SOQ को ब्रेक कर दिया। SOQ कैसे बना है, ये रहा आपका SOQ, दिस वन, ये आपका SOQ एंगल है। ये किस किस से मिलके बना है, ये एंगल SOR से और एंगल QOR से मिलके बना है, तो उसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दिस वन इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड ऐड कर देंगे, राइट हैंड में राइट हैंड ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो 180 एंड 180 मिलके तो आपका 360 डिग्री हो गया। अब हमारे पास में कौन कौन सा एंगल है, एंगल TOP प्लस POQ प्लस TOS प्लस SOR प्लस QOR। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या करना है, POQ आपका सेम रहा, SOR आपका सेम रहा, QOR आपका सेम रहा क्वेश्चन में क्योंकि गिवन है, और ये दोनों मिलके TOP प्लस TOS मिलके आपका क्या बन जाएगा, POS बन जाएगा फिगर में जब आप देखोगे तो ये आपका 360 डिग्री सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन टेक द नेम ऑफ द, यू कैन राइट द नेम ऑफ द एंगल्स ऑल्सो। यहाँ से वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो जब आपकी OP रे होगी तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब आपकी रे ये वाली OS होगी, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये आपका 180 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये लीनियर पेयर से। ठीक है, अब जब आप इनको ऐड करोगे तो एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये यहाँ पे आई एम राइटिंग हेयर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, अब
एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब यहाँ पे हमको ये देखना है फिगर में, अगेन 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब इसमें हमको यहाँ पे नेमिंग पे ध्यान देना है, नेमिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये 4 एंड 5 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं, एंगल क्यू ओ एंड एस। तो 4 एंड 5 को आपको क्यू ओ एस लिखना है। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है ये सारा आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन से। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका। तो पी ओ क्यू आपका कौन सा एंगल है, एंगल 1 है, ये पी ओ क्यू। क्यू ओ आर आपका कौन सा एंगल है, क्यू ओ आर। क्यू आर और ये वाला आपका मिलके बनेगा। तो यहाँ पे जब आप 1 2 3 4 5 डालोगे तो सेम नेमिंग आ जाएगी आपकी जो आपका यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और अगर 1 2 3 4 5 नहीं डाल के करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। इन फिगर 6.24, if PQ parallel to RS, angle MXQ 135 and angle MYR equals to 40 degree, find angle XMY. As you can see in the figure, these two lines are parallel, this angle is 135, this angle is 40 degree, and which angle we have to find, angle XMY. XMY means this angle you have to find. अब इसके लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंस्ट्रक्ट दिस लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को मैं नेम दे देती हूँ ए एंड बी, ओके। नाउ अभी हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ए बी पैरेलल टू पी क्यू किया, एंड पी क्यू इज़ ऑलरेडी पैरेलल टू आर एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पी क्यू और यहाँ पे भी पी क्यू है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू आर एस ऑल्सो, मीन्स ये जो ए बी लाइन है ये हमने पी क्यू के पैरेलल कंस्ट्रक्ट की, और पी क्यू ऑलरेडी आर एस के पैरेलल है, तो ये ए बी आर एस के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब हियर यू विल टेक 1 एंड हियर यू विल टेक 2, ओके। नाउ अब ये दीज टू पैरेलल लाइन पी क्यू एंड ए बी, अगेन आई एम ड्राइंग this one, here you will take angle 1, here you will take angle 2. Now when PQ parallel to AB, तो जब PQ AB के पैरेलल होगी और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया XM, तो ये एंगल 135 और एंगल 1 कौन से एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 + 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। विच एंगल आर दीज, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 - 135, 10 - 5 5 एंड 7 - 3 45 डिग्री आ गया आपका, ओके। तो एंगल 1 की वैल्यू आपके पास में आ गई 45 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, दिस वन 135 एंड एंगल 1, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे एंगल 2। अब ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी पैरेलल टू आर एस, और दिस इज़ द ट्रांसवर्सल एम वाई, ठीक है। अब एंगल 2 एंड एंगल 4, देखो 1 तो राइट हैंड 40 डिग्री तो राइट हैंड साइड में, एंगल 2 लेफ्ट हैंड साइड में, तो विच एंगल आर दीज, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। नाउ आफ्टर दैट अभी आपके पास में क्या हो गया, एंगल 1 एंड एंगल 2 दोनों की वैल्यूज़ आ गई, और एंगल एक्स एम वाई वी हैव टू फाइंड आउट। एंगल एक्स एम वाई किस किस से मिलके बना है, एंगल 1 + एंगल 2 से मिलके बना है, तो 45 डिग्री + 40 डिग्री, तो कितना हो गया ये 85 डिग्री विल बी द आंसर। तो दिस आई हैव सॉल्व्ड बाय नेमिंग, यू कैन सॉल्व इट बाय पुटिंग द एंगल नंबर, एंगल 1 and एंगल 2. So these all 4 examples you have to practice and do these examples in your notebook, because these examples are very important. In exam the examples are also coming. So you have to practice these examples and do it in your notebook. Thank you.